By meeting Mr. Rahul Gandhi, we have decided to unite with the Congress party, have an alliance which we feel is Team Goa that Goa was looking for to save Goa now. I'm talking of Team Goa means unity of all those who are seriously looking to oust the BJP from Goa. These people need to come together, not fight on their own independently and divide the non BJP vote. So we have decided to come together under the leadership of Rahul Gandhi and his party to see that Goa sees change in 2022. And sir, BJP government in Goa, Yes. will you be able to challenge the BJP government and defeat to BJP government? 100%. BJP government was formed under what circumstances in 2017? The people of Goa are aware. See, this BJP government is a government which is created by defection. It is by buying MLAs wholesale in the late of the night. This is not a popular elected government. And when the most popular leader of the BJP, the late Manohar Parrikar, was the defense minister of the country and had full control over the state, in 2017 the BJP could get only 13 seats. Today, Mr. Manohar Parrikar is no longer there. His legacy is being killed day in and day out by the present chief minister. This is a very corrupt and a communal government that we have seen in Goa, which has mishandled the COVID situation, where there is huge price rise, there is huge corruption, and therefore people want change. And I'm sure that the BJP in Goa can be defeated this time. And that's what even BJP people in Goa want at the moment actually. The original BJP cadre wants this BJP to be out. Because this BJP has become like the Bhrashtachari Janata Party. It is not the old BJP that they knew when they were there. It's for everything and anybody and everybody is allowed to come in. People who are having debaucherous character, people who have been in the court on various criminal charges. All these people are leaders of the BJP. So it's no longer the party with a difference in Goa. It's a different party now. And sir, what will be the model of alliance with Congress party? It will be a Congress-led alliance. The Congress will be the pivot of this alliance. We accept that the Congress is the senior partner in the alliance. It is under the leadership of the Congress. Whatever our seat sharing and whatever that we are going to have in alliance, will settle it at the local level. And sir, Aam Aadmi Party is also claiming victory in Goa. What do you think about Aam Aadmi Party claimed victory in 2017 also, and not a single seat was elected. Mine is a party which contested only 4 seats, and we won 3 seats. We had a 75% strike rate. Aam Aadmi Party contested all 40 seats and saved its deposit in only 1 seat. So Delhi is not equal to Goa. If you see the air in Delhi and the air in Goa, that itself shows a major difference. So it is not easy to replicate outside models in Goa very easily. People don't accept, and people of Goa are not fools. We are one of the highest socio-politically conscious state in the country. Our parameters when it comes to health, education are one of the top parameters in the country. Per capita income, we also may be the highest. So we are not people who can be bought overnight by false promises, by giving things which are popular in Delhi. It doesn't necessarily mean that these things are popular in Goa. So Goa is different, and late Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru had once said, "Goa ke log ajeeb hai," because we are not that easy to decipher, and which Aam Aadmi Party and even the TMC will understand this time. Okay, sir, but you know that Mamata Banerjee is also ready to sow Goa. See, Mamata Banerjee is respected as a strong regional leader who fought the BJP in West Bengal. She has entered very late in the day, and the way in which they are moving, it appears they are helping the BJP to divide the non-BJP vote. This is quite clear to the people of Goa. People of Goa have respect for Mamata Banerjee, but the way in which their party has entered Goa is only to benefit the BJP. This is what is clear to the people of Goa. I think she will not see any success in Goa. But you are saying that you are powerful in Goa. People is saying with Congress and you. But why not you decide to meet
Why did you decide to meet Rahul Gandhi? Why not Mamata Banerjee and Kejriwal? I have met Mrs. Mamata Banerjee in the past. I was always trying to move this idea of Team Goa, which is unity of all non-BJP forces. But somehow that is not going through. It's not becoming successful. Now we are reaching very close to the election, and we need to give Goa an alternative. The people of Goa an alternative. So I think this is the best alternative, and this alternative will succeed. So he's not ready to join your all-time claim that we are trying to a grand alliance. So this is also a grand alliance. This is the formation of a grand alliance. I call it Team Goa. Okay, but sir, what is the issue of the election in Goa and what is the failure of BJP government? See, there are three M's. The first M is our river Madai, which is the lifeline of Goa. The BJP government allowed it to be diverted to benefit Karnataka. So we are likely to have huge water shortage in the future, which will devastate our environment and ecology and finish our entire the lifeline of North Goa at least, which is called Madai River. So BJP colluded with the Karnataka government and allowed this water to be diverted. Second is mining. Mining is the mainstay of our economy. The BJP for the last 10 years has been unable to start mining, which it had shut down. So today the mining affected people are on the streets. And BJP is only promising every time that they will start mining. They have not been able to do it. Third is money management. Financial mismanagement is on such a high scale that in Goa, our government is taking loans to pay salaries. Basically, we are taking loans for revenue expenditure, not capital expenditure, which means we are completely bankrupt as a state. So these are three M's, which is a major issue that the BJP will have to face. To add to it, BJP came up with big ideas like, they wanted to legalize marijuana, ganja. तो ये गांजा पार्टी बन गई गोवा में. They had plans like, they have mismanaged COVID on a very big scale. And they have sold every government asset, every possible government asset, including our heritage, they have sold to outsiders. So the BJP has no way to survive in Goa. Okay, sir, but apart from Goa race, which party will be your alliance partner in future in Goa? See, that has to be a decision to be taken by the Congress party, because the Congress leads the alliance. The Congress leads the alliance. If there are, relevant, strong, like-minded entities, I think they will come under the same umbrella. So what about NCP, sir? That is a decision of the Congress party. Okay. I would not like to comment. What did you have to say to Rahul seat sharing formula? See, the first thing is sharing of ideas and coming on the same plane, being on the same wavelength. Mr. Rahul Gandhi was very clear that we have to join hands to free Goa, to once again liberate Goa from a government that is maladministering the state. So on that we have a joint perspective, which is a common perspective, and I welcome his resolve and his attitude towards having an alliance with us. But sir, you are party chief of your party. How many seats you want, sir? So there's seats and all other issues. These nitty-gritties will discuss with the local level of the Congress and work it out. Okay, my last and important question, sir. Before election, can you make an alliance with Aam Aadmi Party and Trinamool Party if you needed? No, we have made an alliance with the Congress party. We will remain with the Congress party. If the Congress decides to have an alliance with any other party, because it is the central, the pivot to the alliance, then we have no issues. We will discuss issues and then perhaps expand this Team Goa. But the decision has to be taken by the Congress. Okay, sir. मैं कुछ क्वेश्चन हिंदी में सर करना चाहता हूँ. गोवा के लिए क्या चाहती है, क्या मुद्दे हैं, कितनी सीट चाहती है, और इसी बीच आप राहुल गांधी से मुलाकात भी करते हैं. गोवा फॉरवर्ड पार्टी एक स्थानिक पार्टी है गोवा की, जो एक रीजनलिस्टिक पार्टी है, सिर्फ रीजनल पार्टी नहीं है. हमारा मुद्दा ऐसा है कि गोयकारपन. इसका मतलब है गोवा, गोवन लोग और गोवननेस. ये हमारी रीजनल आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए हमने पार्टी बनाई थी. हम लास्ट इलेक्शन में पहले बार इलेक्शन में खड़े रहे, मतलब पार्टी के नाम पे
4 सीट खड़े रहे और हम 3 सीट जीते, तो 75% हमारा स्ट्राइक रेट है। तो उसके बाद में हम बहुत बार जो मेजर इश्यूज गोवा के थे, फॉर एग्जांपल एक कोकोनट ट्री जो हमारा रहता है, इसको बीजेपी ने ग्रास बनाया था। वो ग्रास का उनका जो स्टेटस निकाल के वो कोकोनट ट्री को हमने स्टेट ट्री बनाया। तो ऐसा बहुत मुद्दे हैं जो स्थानिक मुद्दे रहते हैं, इनके लिए हम फाइट करते हैं। और हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी से जुड़ने से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का योगदान बहुत है। हमारा लिबरेशन के टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आर्मी भेज के हमको लिबरेट किया था उस टाइम। तो अभी और एक 60 साल हो गए हैं गोवा का लिबरेशन के लिए। तो मुझे लगता है अभी टाइम आया है गोवा को रीलिबरेट करने के लिए, फिर मुक्ति देने के लिए। ये बीजेपी सर ऐसा क्या हुआ कि आपको हटना पड़ा, कांग्रेस की तरफ बढ़ना पड़ा? क्या कांग्रेस नहीं, बीजेपी ने हमें हमारा विश्वासघात किया है 2 साल पहले। उसके बाद में हमने बीजेपी को सपोर्ट किया था, एक टाइम पे मनोहर पर्रिकर को सपोर्ट किया था उनका गवर्नमेंट लाने के लिए। ये गवर्नमेंट एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चलता था, ये एक सेक्युलर गवर्नमेंट था। ये बहुत जो मुद्दे हैं जो देश में बीजेपी आगे बढ़कर ले रही है, वो गोवा में वो लोग तैयार नहीं थे, क्योंकि ये बीजेपी का सरकार नहीं था, ये अलायंस सरकार था। मनोहर पर्रिकर एक्सपायर होने के बाद नया जो चीफ मिनिस्टर हुआ, जो एक एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री है, जिसको कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, जिसको कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं था, उनको सिर्फ बनाया क्योंकि वो आरएसएस से पहले जुड़े थे, ऐसे लोग बोल रहे हैं। मुझे मालूम नहीं क्यों बनाया। ये मुख्यमंत्री ने करप्शन इतना बढ़ाया है और गोवा की छवि को इतनी बिगड़ डाली है कि हमको लगता है कि इनको निकालने से ही गोवा लिबरेट होगा, फिर लिबरेट होगा। और ये करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सिवा ऐसा विकल्प लाना गोवा के लिए बहुत कठिन है। कांग्रेस पार्टी को लेके ही विकल्प लाना पड़ेगा, और ये ऑल्टरनेटिव करने के लिए हम कांग्रेस से जुड़े हैं। लेकिन सर कांग्रेस पार्टी भी हरदम करती है, नेशनल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी, खासकर जहां बीजेपी को डिफीट देना हो। लेकिन कांग्रेस से लोग उतनी ही दूरी बनाती जा रही है, पार्टियां दूरी बनाती जा रही है। आप देखिए ममता बनर्जी गोवा में अलग चुनाव लड़ रही हैं, उनका दावा अलग है। एक बड़े स्तर पर कांग्रेस पार्टी को तोड़ दिया उन्होंने, अपने साथ मिला लिया नेताओं को। ऐसे में आपको लगता नहीं आप एक जोखिम भरा कदम उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ जाकर? देखो, गोवा में ममता बनर्जी ने जैसे कदम उठाए हैं, वो कदम उतने पॉपुलर नहीं है। हमारे साथ कल एक एमएलए था, एक इंडिपेंडेंट एमएलए है, जो पहले ममता बनर्जी के साथ गए। मतलब ये जो राज्यसभा का एमपी हुआ है लुइस फलेरो, उनसे भी पहले ये आदमी ममता बनर्जी से जुड़े थे। क्या नाम वो उनका? प्रसाद गांवकर करके। वो अभी हमारे साथ कल आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि उनको लगता है कि आईपैक और टीएमसी को गोवा समझा नहीं है, इतना आसान नहीं होता है। उनको क्या लगता है कि गोवा आके हम कॉन्कर करेंगे, होर्डिंग लगाएंगे, बैनर लगाएंगे और लोग वोट करेंगे। इतना आसान नहीं है गोवा के लोगों को उल्लू बनाने के लिए। गोवा के लोग बहुत मतलब सुसंस्कृत है, होशियार लोग हैं, और हमारी पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन, हेल्थ पैरामीटर्स में हम देश में सबसे बड़े हैं। तो इतना इजी नहीं है कि गोवा को आके कुछ भी बोल के हम लोग जिता के देंगे। ये नहीं होगा। जो टीएमसी कर रही है और आप भी कर रहे हैं, वो बीजेपी को ही हेल्प कर रही है। लेकिन आप तो काफी स्लोगन दे रही है कि गोवा जीतेंगे, गोवा बदलेंगे। वो वैसे 2017 में भी आपने सेम स्लोगन दिए थे। मैं जब दिल्ली आता था तो सब लोग बोलते थे 8 सीट जीतेंगे, 15 सीट जीतेंगे। 40 के 40 सीट में सब आप हार गए, और सिर्फ एक आदमी उनका डिपॉजिट मतलब जमानत बचा पाया, नहीं तो सब गया था उनका। तो वो हिस्ट्री रिपीट हो जाएगी। लेकिन सर गोवा में आप मजबूत हो या कांग्रेस मजबूत है? आप कांग्रेस को मजबूती दे रहे हो या कांग्रेस आपके भरोसे गंगा हम पार दोनों करना चाहती है? गोवा के लोगों को एक विकल्प दे रहे हैं और गोवा के लोगों को मजबूत कर रहे हैं। ये हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए या कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ये अलायंस नहीं है, ये गोवा को मजबूत करने का अलायंस है। और मुझे लगता है गोवा को मजबूत करने का जो अलायंस आएगा उसको गोवा के लोग सपोर्ट करेंगे, और हम विकल्प होके
प्योर मेजोरिटी से सरकार बना पाएंगे। सर सीट शेयरिंग पे क्या फार्मूला, कितनी सीट सर सीट शेयरिंग पे आपकी क्या फार्मूला है, कितनी सीट आप डिमांड कर रहे हैं, और बाकी अलाई पार्टी कौन होंगे, एनसीपी को लेकर आपके और राहुल जी के बीच क्या बातचीत हुई? क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि हम विपक्ष को मजबूत करेंगे, एकजुट करेंगे, तो उसमें एनसीपी भी है। एनसीपी चूंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार में साझेदार है। देखो, एनसीपी कांग्रेस के साथ साझेदार है महाराष्ट्र में। एनसीपी को साथ में लेना कि नहीं, ये कांग्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कांग्रेस ने एक कॉल लेना चाहिए, उसमें मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। ये नंबर 1 है। दूसरा ऐसा इशू है कि जो सीट हम मांग रहे हैं वो हम लोकल लेवल पे रिजॉल्व करेंगे। हम राहुल गांधी के पास सीट मांगने के लिए आए नहीं हैं। हम राहुल गांधी जी के पास आए थे सिर्फ हमारा मन एक होने के लिए, एक वेवलेंथ पे आने के लिए और एक गोवा को क्लियर मैसेज देने के लिए कि ये विकल्प है। अभी एक कांग्रेस लेड अलायंस रहेगा, ये गोवा फॉरवर्ड पार्टी लेड अलायंस नहीं है। कांग्रेस सीनियर पार्टनर है, इधर पिवट है अलायंस का। तो कांग्रेस ने कॉल लेना पड़ेगा, किसको लेंगे, किसको साथ में लेंगे, ये टीम गोवा कैसे बढ़ाएंगे, ये सब कांग्रेस को लेना जो पड़ेगा। बात आप कह रहे हो, अगर उसी बात में से सवाल ढूंढा जाए, लोकल लेवल पर आपकी पार्टी कितनी सीटों पर मजबूत है? 40 में से कितने पर आप मजबूत बस हो? जितनी, मैं आज नंबर की बात बोलना नहीं चाहता हूँ। एक पहला स्टेप है, ये 2 महीने में हमको आपको मालूम हो जाएगा और हम लोग नए सरकार में रहेंगे। चुनाव से पहले या चुनाव के बाद क्या आपका अलायंस, आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी टीएमसी के साथ या आम आदमी पार्टी के साथ टाई अप कर सकते नहीं, हैं? वही मैं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस इसमें सीनियर पार्टनर है। कांग्रेस ने ये कॉल लेना पड़ेगा, हमको भी बोलना पड़ेगा और हम साथ में बैठ के वो सुलझा देंगे। पर आज के डेट में जैसे आम आदमी पार्टी और टीएमसी गोवा में जो मूवमेंट कर रही है, ये सिर्फ बीजेपी को ही फायदा होता है। इनका मूवमेंट से बीजेपी की हानि कुछ नहीं होती है। बट सर, आप एक पार्टी के प्रेसिडेंट हो, ठीक है, कांग्रेस पार्टी भी है, लेकिन ये सवाल तो गोवा के लोग जानना चाहेंगे कि क्या आप लोग चाहते हैं कि टीएमसी या आम भी आपके साथ आ जाए चुनाव से पहले या चुनाव के बाद अगर जरूरत पड़े? जो लोग 40 सीट कॉन्टेस्ट करने की बात करते हैं वो कैसे साथ में आ सकते हैं? पहले ये क्वेश्चन आपने उनको डालना चाहिए। टीएमसी ने बोला हम 40 का 40 सीट लड़ेंगे, उन्होंने हमारा पार्टी का एक वर्किंग प्रेसिडेंट को तोड़ दिया। एक नए प्रदेश में आके, बंगाल से आके, ईस्ट टू वेस्ट आके, ये फ्रेंडशिप का सिग्नल है कि पार्टी का किसी को उठाने का, उसको पोच करने का, उसको पैसे से खरीदने का, ये क्या तरीका होता है? तो ममता बनर्जी वहां, ये क्या तरीका होता है? रीजनल फ्रंट, फेडरल फ्रंट हम करेंगे। दीदी ऐसी बोलती है कि हम फेडरल फ्रंट बनाएंगे और रीजनल अलायंस को मजबूत करेंगे। ये मजबूत करने का ये है तरीका है जो एक रीजनल पार्टी के साथ ऐसी गद्दारी करना, उनका वर्किंग प्रेसिडेंट को तोड़ना पार्टी से। तो मुझे लगता है उनको मिसगाइड किया है गोवा के बारे में, उन्होंने गोवा समझा नहीं है ठीक तरह से, और जो वो स्टेप्स ले रहे हैं वो स्टेप्स ओपोजिशन यूनिटी के लिए स्टेप्स ठीक नहीं है, ये बीजेपी के बेनिफिट के लिए स्टेप्स है, ऐसे गोवा की जनता को भी लगता है। अभी सर आपने भी तो ममता जी से मुलाकात, मैं मुलाकात किया था इसीलिए कि ये टीम गोवा, मतलब सब साथ में। प्रशांत किशोर जी ने एक बयान दिया था कि आज के डेट में 3 वोट में से 1 वोट मोदी जी को मिलते हैं कोई भी इलेक्शन में। मेरा बोलना ठीक सिर्फ ऐसा था कि जो 2 मिलते नहीं है बीजेपी को, वो 2 सीट 2 लोगों को एक होना मांगता है। मतलब 66% वोट जो नहीं मिलता है बीजेपी को, उसमें यूनिटी आना, उसमें एकता होना जरूरी है। उसके लिए हम एफर्ट करना चाहिए। हम तो हमारे 40-40 सब लोग अगर 40-40 बोलने लगे तो जो त्रिपुरा में हुआ है अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन में, वो गोवा में दिखेगा। मतलब जो बात आप कह रहे हैं, क्या तृणमूल कांग्रेस गोवा में पैसे के दम पर रीजनल पार्टी के लोगों को अपने साथ मिला? 100%। गोवा जाके देखिए, ऐसा लगेगा आपको कि तृणमूल ने जीता है गोवा। एक जगह रहा नहीं है, एक बैनर नहीं तो होर्डिंग डालने के लिए जगह नहीं रहा है, सब प्लेस पे उन्होंने डाला है। दूसरे पार्टी के नेताओं को भी पैसे, नेताओं को सबको, मतलब कंप्लीट बाजार चालू है गोवा में, कंप्लीट बाजार चालू है, और ये गोवा के राजनीति के लिए ठीक नहीं है।
बट आप डिनाई तो नहीं कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि हम चाहते हैं हम साथ आ जाएं, तो possibility मैं तो चाहता है। हूं कि जो सीरियस है बीजेपी को इस बार घर भेजने के लिए, मतलब जो सोचते हैं कि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट हो जाए 2022 में गोवा में, वो लोग सब एक होना चाहिए। बट आप कह रहे हैं कि सर वो बीजेपी के लिए ही वहां पर है। अभी अभी जो आज कर रहे हैं वो बीजेपी को ही बेनिफिट हो रहा है। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल है, राहुल जी से मुलाकात में क्या अच्छा बुरा रहा आपके लिए, गोवा के लिए? हमें लगता है कि राहुल जी का जो एटीट्यूड है वो बहुत प्रेगमेटिक एटीट्यूड है, क्लियर कट एटीट्यूड है कि एक अलायंस सरकार हम बनाएंगे, हम विकल्प बनेंगे और गोवा के स्थानिक इश्यूज को हम इम्पोर्टेंस देंगे। इसमें इसके पीछे उनका फैमिली का भी योगदान बहुत है गोवा के लिए, और मुझे लगता है वो सिंसियर है। तो यकीनी तौर पर आपने ममता जी के बारे में भी बात की होगी राहुल? यस, हमने बात की है। कहा राहुल जी ने ममता जी के बारे में? नहीं, उनका बोलना भी ऐसा है कि सब लोग एक होना चाहिए, पर जो लोकल लेवल पे क्या हो रहा है वो हमें मालूम है। बट ममता जी ने तो कांग्रेस को ही तोड़ दिया जगह जगह। तो हमें भी वो तोड़ दिया, गोवा में आके हमारा भी एक आदमी को तोड़ फिर दिया। राहुल जी साथ जाने को तैयार है ममता जी के? नहीं, वो राहुल जी साथ जाने के लिए तैयार है कि नहीं, वो आप कांग्रेस पार्टी को पूछो। मैं उनका स्पोक्समैन अभी तक हुआ नहीं है, अभी तक तो हुआ नहीं है। बट आपने कहा ना राहुल जी इच्छुक हैं, मन रखते हैं कि होना चाहिए। मन रखते हैं कि जो सीरियस है बीजेपी को घर भेजने के लिए वो लोग एक होना जरूरी है, उनको भी लगता है। इसलिए उन्होंने अलायंस के लिए हमारे आगे हैंड, मतलब हम हाथ क्यों बढ़ाया है ठीक ऊपर। है सर, आपके हैंड और शोल्डर, कंधे पे क्या जिम्मेदारी राहुल जी ने डाली? हमारी कंधे पे जिम्मेदारी है कि गोवा में हम एक टीम गोवा का सरकार बना के लोगों को देंगे और जो सुशासन गोवा को देगा। दिल्ली आते हैं, कैसा लगता है यहाँ केजरीवाल की सरकार है और केजरीवाल जी गोवा में? दिल्ली में आके ये प्रेस आपको जो इंटरव्यू हम रूम में देना जो पड़ता है, वो गोवा में हमको रूम में देना जरूरी नहीं है। बाहर की हवा बहुत नॉन पोल्यूटेड है, गोवा में दिल्ली में कंप्लीट ऑपोजिट है। तो बहुत बुरा लग रहा है दिल्ली के लोगों के लिए कि वो लोग आज पैसिव स्मोकर्स बन गए हैं और इधर बहुत पोल्यूशन है। ये पोल्यूशन नेशनल कैपिटल के लिए ठीक नहीं है, इंडिया की छवि के लिए ठीक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।